जो हदिया इनाम पेश कर रही थी। अब मैं अपने मुकर्रर को बुलाने से पहले जिस शख्सियत को मैं दावत खिताब देना चाहूँगा, उनकी नज़र मैं पेश करता हूँ कि दिल वाले सरफरोश हुआ करते हैं, दिल वाले सरफरोश हुआ करते हैं, हकीकतों की आगोश हुआ करते हैं। मेरी चुप से परेशान ना हुआ कर, गहरे समंदर अक्सर खामोश हुआ करते हैं। आप सबकी तालीम की गूंज में जनाब उस्ताद ज़फ़र खान तरीन साहब, जनाब ज़फ़र खान तरीन साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Judge Mr. Syed Ijaz Shah Sahab, my dearest fellows, ladies and gentlemen, and my brother who is making this video. First of all, I would like to congratulate to the President District Bar as well as the Wadi Session Judge Sahab and the entire judiciary, especially to the Honorable Supreme Court, who directed to the different bars to arrange this kind of bar vocational program. And certainly it is good for the young lawyers, and certainly it's also better for the even seniors as well. The reason is that the moment we start educating to the other, it means that we also get education and we improve our knowledge as well. My dearest fellows, I got law education from Punjab University, Lahore, when it was the late 80s. I was studying in Punjab University. I still remember one teacher when he delivered the first lecture. I was a young guy like you. When he delivered the first lecture, at that time, the students were allowed to appear in the law examination in Urdu as well. So, the teacher was also Advocate Supreme Court. So he actually advised us. On our first day, Judge Sahib, he said, okay, remember, never appear in the exam in Urdu. This is a conspiracy of the richest people against the poor people. English is our official language. I've been in the whole world almost. Been in America, Italy, France, Germany. Even we have got home in UK, Milton Keynes. The doctors and the engineers, lawyers, they're always successful in abroad. The reason is that they can better understand English, and now English is being adopted as an international language. A few months back, my one director was saying he resides in Spain. He is saying that when I settled in Spain, in Barcelona, the English was not being tutored to any person who is Spanish. But right now it is mandatory for the boys to learn English. So firstly, before coming to that topic, firstly I will humbly request you, and I will English ठीक है, उर्दू में बात करें। चले उर्दू और अंग्रेजी की बात करते हैं। अजान हो जाए।
सर चलते जलते कहीं ना ये हमारी दूसरी दुकान है हमारी। हमारी मदर टंग है सराइकी, मैं तुम्हें सारी ज़बानें बोल देता हूँ, सिंधी भी पश्तो भी। थैंक यू। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यूके के अंदर जैसा जो हमारे डॉक्टर्स इंडिया के और पाकिस्तान के जो हैं वो एज कंपेयर टू दी फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, स्विस एंड द इंटायर यूरोप, उनसे ज़्यादा बेहतर इंडियन और पाकिस्तानी को मिलता है डॉक्टर्स बीइंग इंजीनियर। द रीज़न इज ओनली दैट कि हमारी जो ज़बान है वो अंग्रेजी है। स्टिल रिमेंबर कि मैं अमेरिका में जब 93 में पहली दफ़ा गया तो मैं बाल कटवा रहा था, बड़े बड़े बाल मैंने रखे हुए थे, तो मेरे छोटे भाई से एक बुरा पूछ रहा था, कहता वो इसका है, मैंने कहा इसमें ब्रो, तो मैंने कहा नेवर सीन है, मैंने कहा ये कम टू अमेरिका 3-4 days बैक। तो वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आई मेकिंग क्वेरी अबाउट मी एंड व्हाई डोंट यू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू मी। तो ही स्टॉप ट्रेनिंग कैंची होते हफ्ते च रह गई थी ते वो खड़ा थी कि मेरे को देखने लग गया, लगा कि ये कहता है कि फ्रॉम वेयर यू लर्न इंग्लिश, मैं कहता फ्रॉम आवर ओन कंट्री। कहता हाउ कम यू से दैट यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर ओन कंट्री? इट्स आवर लैंग्वेज। सर्टेनली माय डियर फेलोज, इंग्लिश इज आवर लैंग्वेज। जज साहबान के तमाम फैसले अंग्रेजी में होते हैं, हाई कोर्ट के तमाम फैसले अंग्रेजी में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले अंग्रेजी में होते हैं, किताबें हमारी सारी अंग्रेजी में होती हैं। तो I will brotherly advise you to think, to start think in English and don't waste your time in the bar rooms. Sit in the bar room, have a cup of tea. I have never sit in the bar room. I always prefer to sit in my own office. bar इलेक्शन सर पे है ना, हम मैं एक ग्रुप के चेयरमैन में हूँ, तो बेहतर यही है कि आप लोग हम डब्बे की तरफ आते हैं अपने। I requested to the present district bar, Mr. Basharat Ali Huddal Sahab, कि I want to speak on बल्कि he suggested me a topic of the extrajudicial confession, but I asked him that it's better that I should talk on circumstantial evidence, क्योंकि circumstantial evidence जो है वो ज़्यादा मैंने कहा मेरे लिए बेहतर होगा, उसमें हम आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर भी ये मर्डर केसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर फौजदारी वकील हूँ, सिविल केस आज तक किए हैं ना कभी पता है। एक बंदे ने मुझे दीवानी का केस देना शुरू किया, ये होगा ये होगा ये होगा इस तरह की होगा इस तरह होगा इस तरह। मैंने कहा अगर मोगे से बंदा मारे तो मैं आ देना, बाकी मोगे का केस मेरे को ले रहे। तो मैं बात जो भी करूँगा आपके ध्यान में रहे कि सिर्फ फौजदारी के हवाले से ही बात करूँगा। तो हुंदल साहब ने कहा कि सर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, we are very short of time, तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर करें। हकीकत में हमारे लिए मैं फीलिंग लिटिल बिट स्मॉल, क्योंकि जज साहब ने PhD भी की हुई है, तो ज़्यादा फ्रेश नॉलेज उनके पास है, वी आर प्राउड ऑफ हिम। आपको मेरा खाली छोटी बहन पता नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने लॉ के अंदर PhD भी की हुई है। डॉक्टर साहब एम आई राइट? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का तो टॉपिक नहीं है, चले आज कुछ बताया गया उसके मुताबिक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे आते हैं। फर्स्टली आई वांट टू एलैबोरेट यू दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फेशन। वन कन्फेशन इज वेरी कॉमन फॉर द young lawyers as well as for the other people. That's a judicial confession which is being recorded under section 164। 164 का बयान कहते हैं कि ये वो 164 का बयान, उसमें थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक वही है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का। 164 का जो बयान है 164 का, ये हमेशा लिखा जाता है लेकिन इट इज अ स्टेटमेंट। देयर इज नो कंपल्शन एंड बाइंडिंग that if
the girls have left the home and she has embraced marriage with somebody. So when she will be produced before the court and she will appear before the judge, so then our statement will be recorded. Anybody, even जो 164 का बयान है, वो accused का भी हो सकता है. 164 का बयान, that would be considered a confessional statement, and it carries the weight. It carries the weight. ये confession एक ये है. अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ये आपका कानून शहादत का सेक्शन 37 जो है वो इसका अहाता करता है. पढ़ा पूरा मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन आप ब्रिटिश लॉ जो आपको बता रहा हूँ, मेरे को दोस्त बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं कोर्ट से निकल के जो है ना जी पढ़ केसेस में निकल के आ रहा हूँ. मेरे मंगरी साहब मेरे जूनियर भी आ गए हैं. तो 37 जो है कानून शहादत जो है वो इसमें माइनर स्पेलर्स को इसका अहाता करता है. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या? वन थिंग कीप इट इन योर माइंड कि व्हेन the accused is not nominated in the FIR in the criminal cases, he is not nominated in the FIR in the criminal cases. There are a few cases वो आपको बाद में चल के बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा इसमें इसी तक जगह पर रखते हैं कि if the accused is not nominated in the FIR, so police always collect the evidence which certainly based upon the 3-4 kind of evidences. Number one, that's a last scene evidence. If accused is not nominated in the FIR, this Honorable Supreme Court always says that the accused, after arrested, he should put for the identification plate. फिर ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है, ये एक चेन उसकी जो है वो बनाई जाती है. 37 का जो मैं अर्ज कर रहा था, इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, नंबर वन आपके जहन में ये रहे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन शुड बी वॉलंटियर. इट शुड ऑलवेज बी वॉलंटियर. नहीं जमीन के हाथों मजबूर होके बंदा जाके ये कन्फेशन करे और ये कहे कि जी यस आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, तो ये वो कहे, तो it would occur before the two witnesses, and those witnesses must be put for the evidence both the, तक उनकी corroboration हो सके. पुलिस वाला तो तीसरे नंबर पे आएगा, उनकी corroboration जो है वो एक दूसरे के साथ हो सके. तो वो जो extra judicial confession, number one, it should be volunteer. Number two, there should be no sort of inducement. Number three, there should be no sort of threat. No sort of threat. The fourth thing which is very important is, very important is, it should not be a retracted confession. And the confession should not be a joint confession. If it is a joint confession, जैसे पुलिस बात लिखती है कि जी दो आदमी आए और उन्होंने आके अपना कन्फेशन किया, तो वो दैट इज टोटली इनएडमिसिबल इन द आइज ऑफ लॉ. कन्फेशन हैज टू बी वन बाय वन, जिसमें एक अक्यूज अपना करे, बट इट शुड बी वॉलंटियर. Voluntarily has to be made by the accused certainly, who make confession before the two witnesses that I have committed this crime, but with my conscience, ज़मीर के आंखों में भूल होके I am making my confession. अब इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों वो ये है कि जब वो कन्फेशन करता है तो आप जिस वक्त देखेंगे इसको 37 कानून शहादत को, if the confession should be thousands miles away from the inducement. What is an inducement? Inducement is तरकीब. यानी मैं कहता हूं कि भाई मैं आपको छुड़ा दूंगा, आप जुर्म इकबाल कर रहे हैं,
अगर वो गवाह आके ये कहता है, फौजदारी वकील हमेशा उसे पूछते हैं कि आपने फिर उसको कहा होगा कि तू घबरा ना, तो मैं तुम्हें छुड़वा देंगे, तो वो कहता है जी मैं मतलब है जो है ना जो मैं बहुत का घबरा रहा हूँ। या हम क्वेश्चन करते हैं कि यार आप इस पोजीशन पे थे भी सही कि आप उसको छुड़वा सकते थे। मतलब कन्फेशन देखो ना, अगर मेरे पास अगर कोई बंदा आता है तो वो 37 सर, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है तो सडनली उसको जो है वो मैं इस पोजीशन पे होना चाहिए कि मेरी कोई बात मान भी सके। तो अगर कोई बंदा बात ही नहीं मानता तो उसके पास व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट to make confession before that guy who don't have any influence upon the other person to make compromise. So it should be without inducement. Very important thing is it should be without sort of threat. If somebody says that you will not make confession, I will kill you, that's a threat. If you say that you can't go anywhere or you are not making a confession, make a confession. If there is a threat, तो वो भी that is totally inadmissible in the eyes of law. और चौथा मैंने अर्ज किया कि वो जो है वो it should not be a joint confession. Joint confession के बारे में थोड़ा अर्ज कर देता हूँ। मैं और मेरे छोटे भाई अगर हम इकट्ठा बोलना शुरू कर दें, इकट्ठे खड़े होकर भी बोलना शुरू कर दें, तो किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। So, Honorable Supreme Court, there is a plethora of citation on this particular point. There is a chain of citation on this particular point. But remember, always remember that extrajudicial confession is a weakest type of evidence. It is always considered a weakest type of evidence, although it is our evidence. There are many cases. We always say, sir, a single iota of evidence is not available, and the record which connect the accused to the commission of the offense. तो वो जो कन्फेशन है वो ये हो गया। रिट्रैक्टेड कन्फेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले इस पे हैं कि was there any reason to make confession before the witnesses? What is the reason behind it that the Honorable Supreme Court and Honorable High Court says that it is the weakest type of evidence? So Honorable Supreme Court in many cases has elaborated this thing. Was there any reason to make confession? जेब पुत्रा जेब पिक पॉकेटिंग करने के बाद अपना मानने के लिए तैयार नहीं होता, कोई किसी को कुछ कर ले वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या रीजन क्या है कि जी वो बंदा आके कन्फेशन करे? इतना कन्फेशन वो करने वाला बंदा है, प्रोड्यूस दैट एक्यूज बिफोर द लॉयर मैजिस्ट्रेट साहब, और यू शुड आल्सो मेक कन्फेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज साहब और बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉयर मैजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि सिविल केसेस होते हैं, एक ही जज साहब होते हैं। जब वो केसेस सुनते हैं सिविल, तो वो सिविल जज, दीवानी केसेस में वही जज साहब, ऑनरेबल जज साहब जब बैठे होते हैं फौजदारी सुनते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट साहब। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब सिविल सुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, वही सेम पर्सनैलिटी सेम पर्सन जिस अगर फौजदारी सुनते हैं तो वो सेशन जज हो जाते हैं। तो ये वो वजह है कि नॉर्मली इसको बनाया जाता है पुलिस में, दिस काइंड ऑफ कन्फेशन। अदरवाइज हमारे इस सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आता कि पहले तो ही कमिट्स अ क्राइम, हीनियस क्राइम व्हिच इज अ मर्डर, एंड लेटरली ही मेक कन्फेशन बिफोर द टू विटनेसेस। और इसके अंदर चंद अथॉरिटी आपको मैं बताता हूँ जिस पे उन्होंने कहा जी कि व्हेन ही दैट द पर्सन, सिंगल पर्सन came to you and he made confession, was he rounded up by you and you produced him before the police? If he was not rounded up, he was not arrested and taken into custody by the two witnesses and was not produced before the police, or the police was not called by those two witnesses who claim that the person has made confession, it means that's sort of petty. Lastly, मैं इसमें अर्ज कर देता हूँ, there is another confession. इसमें आप सेक्शन देखिएगा 38 सर, 38 कन्फेशन जो है इस पे भी बाद पुलिस वालों ने कई दफा अपने केसेस बरी कराए हैं। एक दो केसेस तो सिर्फ इसी बात के ऊपर ही
मैंने बरी करवा दिए। काफ़ी रिपोर्टेड केस है, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे। तो दिस इज कन्फेशन सर 38 जो है ये कन्फेशन है बिफोर द पुलिस। And the confession before the police is not admissible. It is totally void of issue and totally disbelief. It has got no sanctity, it has got no veracity. Confession before the police is not admissible. Amir Farhan साहब, welcome sir. तो ये admissible नहीं है। चौथा confession है, वो कन्फेशन है 38 और 39 दोनों कन्फेशन जो हैं ये दोनों के दोनों जो हैं वो पुलिस के हैं। कन्फेशन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। जहां पर आप लोग देखें कि ये कन्फेशन हैज बीन मेड बिफोर द पुलिस, इट मींस कि उसको तो एडमिसिबिलिटी उसकी है। चौथा है टू सम एक्सटेंट उसका कुछ पोर्शन जो है सेक्शन 40 है कानून शहादत का, उसको माना जाता है। वो है टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी वगैरह, वो अगर होता है तो उसको जो है मतलब माना जाता है कि जी वो मतलब वही पुरानी वही FIR हैं, वही कि जी मुलजिम आगे आगे चल रहा था और पीछे में लेता हुआ फला कमरे में ले गया, संदूक जो है ना जी उसके नीचे डंडा पड़ा था या संदूक के अंदर पिस्टल पड़ा हुआ था, वो उठा के दिया और हमने वहीं पर बैठ के रिपोर्ट की और सारा कुछ किया। That's simply recovery is simply a corroborative piece of evidence. उसकी corroboration जो है किसी से होनी चाहिए, but it does not carry the weight. Doesn't mean it can जैसे हमारी पुलिस ओपिनियन है इस तरह से अगर वो it is not expert binding upon the court. Expert का मतलब ये है, आपको बोल रहा हूँ, वो ये है कि आपके उसके कम से कम उसको मतलब he should gather the evidence, he should मतलब collect the evidence. It should not be expert उस अकेले की ना हो तो बस बोले कि जी मैंने बस कुछ कह रहा है तफ्तीश के तो ठीक है। ये सर ये कन्फेशन है। तो मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे सर। एनीबॉडी मेक अ क्वेश्चन सर, आई एम रेडी टू आंसर। नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। मैं सर वो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए गया तो क्योंकि हाई कोर्ट तक लाइसेंस जो है हमें बिल्कुल मिल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये है कि आपके जो है वो रिपोर्टेड केसेस किताबों में छपे हुए कम से कम मिनिमम 10 होने चाहिए। आपकी लिस्ट ऑफ केसेस जो है वो सवालों से मैंने मुझे याद आ गया तो वो आपका पंजाब परसों से आपको तो हाई कोर्ट सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, चीफ जस्टिस साहब जारी करते हैं। सीनियर एक जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो बैठे होते हैं, सब चीफ जस्टिस साहब भी बैठे होते हैं। तो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर टेकिंग माय फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर गेटिंग द लाइसेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने देखा तो गुजरात चीफ जस्टिस मंजूर मलिक साहब बैठे हुए थे। तो मैं जाके खड़ा हो गया तो वो ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि पता है कोई टिकट्स भी आते हैं कि नहीं आते, कई बंदे होते जाते बैठ जाते हैं। जब मैं आया तो उधर ही बैठा तो खिलावत खिलाफ बात हो रही थी तो मैं जाकर खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे देखा कहने लगे अब सीट, मैं बैठ गया। बैठा तो टेक लगा के नहीं बैठा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करके बैठा हुआ था। तो उन्होंने फाइल देखी, दोनों ऑनरेबल जजेस साहब के पास फाइल थी, बाहर तकरीबन 150 एडवोकेट्स खड़ा हुआ था। तो मुझे मंजूर मलिक साहब ने देखा, कह रहे भावलपुर से, मैंने लॉर्डशिप जो रिमेन in Bahawalpur bench and I've conducted many murder references in your court, and even the one case as reported in this month, Pakistan Criminal Law Journal, page law. मुझे देखा ऐसे तरीन साहब, मैंने कहा यस माय लॉर्ड, उन्होंने साथ में कहा, उन्होंने कहा ही इज अ गुड एडवोकेट, ही कंडक्टेड मेनी केसेस इन माय कोर्ट। तो लॉर्डशिप के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड ब्रदर इज टॉकिंग अबाउट यू, I don't think so that there is any need to take your interview, no need to take any questions. मैंने जंप लगा खड़ा हो गया, मैंने कहा इससे पहले कि वो क्वेश्चन पूछना शुरू करे बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।